Hi Shivani. Hi Nishant. Today I'm going to prepare this video only for you both because I want to share with you some of my life, some of my aspects, some of my views, some of my ways, how to live a life during our total lifespan. I have divided total lifespan in three parts. We can say one is teenage, another one is we can say commercial life, and third one is family or social life. ऐसा बोलते हैं ना कि हर आदमी लाइफ में तीन बार जन्म लेता है. एक जो वो जस्ट ही टेक अप he born from his or her parents and completed his total education until maybe school education, college education, where he is so much controlled by his or her parents. Then he entered in another phase of the life where he got a job or he started some business to earn a money, and then he entered in commercial life. And third one is we can say family life when he get married and entered into social economical family life where his responsibility much more and more than his teenage. So my partly one by one I will discuss with you both how we should behave in a teenage life, how should we behave in a commercial life, and how should we behave in a family life. तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि डोंट थिंक दैट इट इज़ बाइंडिंग ऑन यू. ये आप दोनों ने भी करना ही चाहिए, ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है. मैं जो भी बोलूँगा ये पहला आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या बोलेंगे उसका एक्सपीरियंस ले लो. इफ़ यू फील इट इज़ good or okay, then only it follow it. I am not your boss. Treat me as a friend, because it is said that when the child entered in the age of 13 after finishing 12 years of age, then parent must behave like a friends. They should not behave like a boss, because they need a friend, not need a boss. So just treat me or just consider me as a friend, and whatever I am going to say you, consider as a friend suggestion. And if you feel it is good, follow it. Not good, don't follow it. It is not binding or mandatory for you. But at the same time, I will say that when you follow these things, whatever I am telling you, these all things are came to me with my this huge experience, whatever I got in India and abroad, when I entered in my commercial life, when I entered in a family life, and when I completed. So I have gone through all three pages now. So I am much more capable to discuss with you or share some of my views with you both about all these three phases. The first video में I am going to tell you about how to behave in a teenage life. Very very important. And in this teenage you don't have much more responsibility, but you have to follow so many instructions from your parents, because you just like you can say, you know, the soil, raw soil, when the potter, कुम्हार जो soil को shape देता है, initially he has very raw clay, and he gives a good shape to that soil, and it become a skilled article or good pot. So you just like a soil clay in that age. So you must have to listen your parents or some important personality in your family, and you have to not follow directly it, but think on it and follow if you feel good. In that age you are just obedient students child, and
वट एवर थिंग्स दे आर टेलिंग यू, यू हैव टू फॉलो इट. तो अभी उस एज में आपको क्या करना चाहिए? ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द टीनेज लाइफ ऑफ द चाइल्ड्स और टीनेज लाइफ अबाउट यू. इस लाइफ में टीनेज ने या लड़का लड़की ने या चाइल्ड ने कैसे बिहेव करना चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि उनके पेरेंट जो कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने चाइल्ड को, उनमें सुधार आना बहुत ज़रूरी है. अगर वो सुधरेंगे तो ही अपने बच्चे प्रॉपरली सुधरेंगे, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट टू मोल्ड द child or to give a proper shape to child's behavior. Till I will talk on how the child should behave, because today's video is about the child, not for parents. तो टीनेज लाइफ में स्पेशली आई एम प्रिपेयरिंग वीडियो फॉर यू बोथ. तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है टू पेरेंट्स? तो एक तो बात यह है कि ठीक है, मौज मस्ती बहुत करनी चाहिए इस एज में, वही एज रहता है, लेकिन साथ में ही मैच्योरिटी लेवल बहुत ही कम रहती है अपनी. तो जो भी बुजुर्ग घर में है, मे बी योर फादर मदर, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, ये सब लोग बहुत बुद्धिमान है ऐसा भ्रम मत कीजिए. लेकिन उनके पास थोड़े बहुत एक अनुभव के बोल रहते हैं, एक एक्सपीरियंस वाले बोल रहते हैं, तो उनको सुनना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अपने जो बहुत क्लोज रिलेशन वाले रहते हैं, जैसे कि मदर फादर या ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, वो कभी गलत सलाह आपको देंगे नहीं. ये बात अपने ध्यान में रखिए. हो सकता है कभी कभी वो फोर्सफुल हो, तो कभी कभी थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट मैक्सिमम टाइम्स दे आर करेक्ट. So just to follow their instructions when you feel good. ये बात हो गई कि first thing is to follow the instructions from your seniors or from your elders in a family. Second thing is in a school life. मस्ती तो करनी चाहिए, वो आदि नहीं, तो उसमें कुछ दोहराई नहीं है, लेकिन मस्ती के साथ साथ थोड़ा बहुत करियर के बारे में भी सोचना चाहिए. नाउ यू आर इन अ गुड पोजिशन बिकॉज योर पेरेंट्स हैव अर्न अ लिटिल बिट मोर, not too much worst condition like us. You have at least your own home or little bit money, but till your responsibility is to make it multifold. Whatever earning is there from our parents, we have to make it more. Then only it will shows that you are doing something. Otherwise your life is just कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी. तो स्कूल लाइफ में या टीनेज लाइफ में आपको उस बात के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है. उस जो एज रहता है टीनेज का, मे बी अप टू 12 years old और 20 years old, स्कूल लाइफ में आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत रहता है. जो भी चीज़ें आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो पूरा लाइफ में अपने दिमाग में बैठ जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल से फॉर माई एज, अभी मैं इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग किया, इंडिया में काम किया, अब्रॉड काम किया, पर जैसे ही जो भी संस्कार मेरे को मेरे बचपन में हुए, जे व्हेन आई वाज अबाउट 5 to 10 years old, वो कभी भी जाते नहीं. ये बात पक्का ध्यान में रखिए. जैसे अभी मैथमेटिकल में इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, उससे हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं, लेकिन जब बात आती है टेबल की, तो बे एक बे, बे दूने 4, यही अपने मन में आता है, दिमाग में आता है, क्योंकि वो चीज़ फिट अपने दिमाग में बैठी है. तो वो जो सॉफ्टवेयर उस एज में पक्का होता है, वो कभी भूलता नहीं. ये बात तो आपको पक्की ध्यान में रखनी चाहिए. तो इसीलिए उस टाइम में आपको प्रॉपर पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. अच्छे सीखेंगे उस एज में तो उसका पूरा लाइफ में फ़ायदा होगा, लेकिन बुरे सीखेंगे तो उसका नुकसान भी पूरा लाइफ में हो सकता है. बुरे संस्कार आपके ऊपर लग जाएंगे
तो it is very difficult to remove that virus from your software. That virus should not be allowed in that age, क्योंकि वो जो बैठ जाता है अंदर तो निकलता नहीं जल्दी. तो दो चीज़ें मैंने आप तक बताई कि जो जैसे कि इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है इफ़ यू फील गुड. सेकंड थिंग इज वायरस से दूर रहना है. जो भी बुरे संस्कारी लोग रहते हैं, बुरे संस्कारी बच्चे रहते हैं या बुरा माहौल रहता है, जितना हो सके उतना उससे दूर रहिए. नाउ आई विल टॉक अबाउट थर्ड थिंग, दैट इज रिस्पेक्टफुलनेस. अपने जो भी एल्डर्स है, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ गिव एंड टेक पॉलिसी. एक्चुअली रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलता है. अगर तुम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरा भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा. तो वो चीज़ पक्की ध्यान में रखिए कि उस एज में जो भी एल्डर से, फ्रेंड से तमीज़ से बात कीजिए, बराबर उसकी बातें सुन लीजिए और प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कीजिए. रिस्पेक्ट देना एक बहुत बड़ी बात है. तो ये जो संस्कार है ये आपको सीखना ही पड़ेगा. किसी नया जगह पे जाते हैं तो ऐसी कुछ भी हरकत मत कीजिए कि जिससे अपने पेरेंट्स को शर्मसार होना पड़े या दे मे फील एम्ब्रेसिंग. तो अपने जो गुण रहते हैं, अपने जो संस्कार है, जो सामने वाला बोलना चाहिए कि ये बच्चा बहुत संस्कारी है, उससे तुम्हारे पेरेंट्स का सीना बहुत बढ़ता है. दे फील गुड बिकॉज child is the most precious property for the parents, not money. So take care that whenever you go at new place or you meet some strangers, behave properly, so that the person who is in front of you feel that you have a very good sanskar, you have very good manners, ethics. Just behave in that way. Another thing I want to express for you is such that some things, some habits you have to bind yourself. For example, cleanliness. Always try to keep yourself clean and your surrounding clean. It make you fresh. So wherever you go, wherever you stay, keep that area clean. Forget about the others. ऐसा होता है कभी कभी हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो मैं ही को साफ करूँ, मैं ही को क्लीन करूँ, मेरे साथ दूसरा भी रहता है. Forget about others. If you are not feeling healthy, if you are not feeling fresh, just clean the area where you are living, because it is sake of your happiness, not others. बहुत सारी चीज़ें मेरे को बताना है लेकिन ये वीडियो बहुत बढ़ता जाएगा. तो ये जो मोटा मोटा थिंग्स है, जैसे कि और एक थिंग, अपने जो पंचुअलिटी है, थोड़ा अर्ली उठना, एक्सरसाइज करना, ये हमने बाइंडिंग करना पड़ेगा, वो भी करो. देन वन मोर थिंग इज दैट योर क्लॉथिंग एटिकेट्स. Keep your cloth always proper pressed and clean, because it is said that 7% of personality looks from the person how looks, how he stay, how his cloth. तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जाता है, आपके क्लॉथ से जाता है, आपका इनिशियल टॉकिंग से जाता है. तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो ड्रेस है, कपड़ा है, प्रॉपर प्रेस और अच्छा होना चाहिए. जैसे कि पहले बोले लोग बोलते थे कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. अभी ये नारा गलत है मेरे हिसाब से. आई विल से दैट हाई लिविंग, हाई थिंकिंग. जस्ट फॉलो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर. हमेशा सूट बूट में रहते थे. वो कभी धोती पहन के या शर्ट बिना पहने नहीं जाते किधर भी. प्रॉपर क्लॉथिंग, प्रेस्ड क्लॉथिंग, सूट बूट एंड दैट लेवल थिंकिंग आल्सो. तो गुड थिंकिंग
Good living is very, very much necessary. Dining etiquette is necessary. Don't make noise of your lips whenever you go outside for dinner or lunch. और सारी चीज़ें तो क्या करना चाह रहा था मैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग इज नॉट गुड, हाई थिंकिंग एंड हाई लिविंग इज गुड. हमेशा अच्छा रहो. तुम्हारे कपड़े जो है दैट इज योर इन्वेस्टमेंट फॉर योर करियर. डोंट थिंक दैट यू आर वेस्टिंग मनी. योर क्लॉथ मस्ट बी प्रॉपर, गुड क्वालिटी. एक बार खाने में कंजूसी कीजिए, लेकिन ऐसी चीज़ों पे कंजूसी मत कीजिए. कम्युनिकेशन स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल, दैट आल्सो वेरी मच नेसेसरी. सो ये सब मोटा मोटी चीज़ें हमको टीनेज में ध्यान में रखनी बहुत बहुत ज़रूरी है. वो वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है. आई विल स्टॉप हियर एंड प्रिपेयर नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट etiquettes and manners, my suggestions and share. Thank you. Hi, dear Shivani and Nishant. Just we talk about our teenage, how we have to behave during that age. बहुत सारे चीज़ें बताने की है, बहुत सारे थिंग्स है, but it is not possible to cover all the things. You knows better. Now I want to talk something about your next life, that is you can say और commercial life. मैंने जैसे बताया था कि आदमी की लाइफ में 3 बार जन्म लेता है. पहला टीनेज लाइफ, सेकंड इज कमर्शियल लाइफ एंड थर्ड वन इज फैमिली लाइफ. तो हम लोग विल टॉक अबाउट नाउ अ कमर्शियल लाइफ. कब शुरू होता है? तो जैसे हमारा एजुकेशन ख़त्म होता है, हमको कुछ नौकरी मिलती है, वी स्टार्ट सम बिजनेस, वी एंटर्ड इन अ कमर्शियल लाइफ, इन अ सराउंडिंग फैमिली, सोशल फैमिली और पब्लिक कल्चर, कॉरपोरेट लेवल. तो जैसे हम लोग उस दुनिया में एंट्री करते, कमर्शियल लाइफ में एंट्री करते, तो हमारे में कौन से चीज़ें आना चाहिए, हमारे में कौन से बदल होना अनिवार्य है, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है. अभी आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई ऑलरेडी वेंट फ्रॉम ऑल दिस 3 phases, सो आई नोज बेटर what things are required when you enter in a commercial life. जैसे कि हम लोग कुछ पैसा कमाने लगते हैं, we start some earning by in a way, maybe in a due to some with some business or with some jobs. तो जैसे हमको कुछ नौकरी मिलती है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई बिजनेस, तो उस एज में भी उस फेज में भी कुछ चेंजेस अपने आप में होना बहुत अनिवार्य है. जैसे कि एक तो पंक्चुअलिटी आना बहुत ज़रूरी है. जहाँ कहीं भी आपका बिजनेस हो, नौकरी हो, तो वी हैव टू रीच एटलीस्ट 10 minutes बिफोर टू दैट वर्क प्लेस, एंड एट द एंड ऑफ द जॉब फॉर दैट डे, रिपोर्टिंग very much necessary. Then during that 8 hours of duty, you have to talk so many peoples. You have to face your boss. You have to write so much emails, written communication. तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ध्यान से करना जरूरी है. Maybe we have or you have so much content in your mind, in your brain, but if it is not come out or not delivered properly, then no use. तो एक बात पक्का ध्यान में रखिए कि जैसे हम लोग कमर्शियल लाइफ में एंट्री करते हैं, तो गिव 80%, आई एम सेइंग 80% विथ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर, गिव 80% importance to your communication skill. Increase your face value. Then only you can succeed in your life. आपका जर मुंह में
मुलायमपना नहीं रहेगा, बात करने की तमीज़ नहीं रहेगी, तो यू विल नॉट नेवर बी सक्सीड इन योर कमर्शियल लाइफ। कहीं पे भी जाओ, मान लो बिजनेस करना है तो आपको कस्टमर के साथ बहुत अच्छे तरह से बर्ताव करना बहुत ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़रूरी है, लिसनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जॉब करते हो तो रिलेशन रखना बॉस के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी हैव टू फेस सो मेनी टाइम्स विथ योर सीनियर्स, सबऑर्डिनेट्स, मे बी सम पीपल वर्किंग अंडर यू, तो उनके साथ रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है। डोंट बी अंडर एस्टिमेट द अदर पर्सन्स, गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू देम, एक्नॉलेज देयर वर्क। जैसे कोई मान लो आप कोई जगह पे एज अ ऑफिसर काम कर रहे हैं, आपके हाथ के नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, मे बी स्वीपर और सम टेक्नीशियन, 4th class technician. He is also very important for that refinery, for that office. He is equally important for that office and refinery, because whatever refinery is run or company is run, it is a teamwork, not only due to engineers or not only due to officers. Everybody effort in it. So हर एक का काम को आपको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। जैसे एंट्री करते हैं ऑफिस में, तो स्टार्ट यू विद योर डे इन अ गुड वे, पुट स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज। स्माइल इज सच अ थिंग दैट जस्ट लाइक अ वेलकम नोट इन फ्रंट ऑफ योर डोर मैट। आपके फेस पे स्माइल रहेगा तो इट इंक्रीज योर फेस वैल्यू, सामने वाला आपसे बात करने की कोशिश करेगा। अगर आपका चेहरा हमेशा टेंस रहेगा तो ही विल नॉट इजीली कम टू यू, नॉट टॉक विथ यू। तो फर्स्ट थिंग इज कीप स्माइल ऑन योर फेस, देन एक्नॉलेज द अदर वर्क्स, कॉम्प्लीमेंट द अदर वर्क्स, वॉट एवर इट मे बी। उसको कॉम्प्लीमेंट देना मत भूलिए। जो भी काम करता है तो उसकी वाह जरूर कीजिए। मान लो 10 लोग आपके हाथ के नीचे काम करते हैं, आपके अंडर काम करते हैं, उसमें से 1-2 लोग तो बुरे रहेंगे ही, वो मुश्किल नहीं। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका काम की तारीफ करना मत भूलिए, पर्पसली कीजिए, बाय रिटन कम्युनिकेशन, बाय फोन कम्युनिकेशन और बाय एनी अदर वेज। इससे क्या होता है कि अच्छे काम वालों की कदर होती है और इट दे गिव्स प्रॉपर रिस्पेक्ट टू यू। ऐसा बोला जाता है ना कि 10 लोग छूट जाएंगे जिन्होंने गुनाह किया तो चलेगा, लेकिन कोई निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। 10 बुरे लोग आपके नीचे काम करने वाले, उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो चलेगा, मुश्किल नहीं। लेकिन 1-2 लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं अंडर यू, उनको तारीफ करना मत भूलिए प्लीज़। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो फर्स्ट थिंग स्माइलिंग, सेकंड थिंग इज कॉम्प्लीमेंट, थर्ड थिंग इज लिसनिंग स्किल। जहाँ कहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो उसकी बात सुनने की आदत डाल दीजिए। और सुनना मतलब नॉट जस्ट लाइक सुनना, विथ प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिए, उसकी बात ध्यान से सुन के उसके ऊपर कुछ ना कुछ हल्के से कमेंट करते रहना। ऐसा कहा जाता है कि कोई अगर आदमी दुख में हो, इफ यू वांट टू टेल हिज सॉरोज टू यू, और वो आपके पास आता है, ही टेल्स सम बैड थिंग्स और सम सॉरोज टू यू, तो उसका जो आधा दुख है, आधा सॉरोज है, वो खाली आप सुनने से कम होता है। ये आई एक्सपीरियंस्ड इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू। तो खाली सुनने से ही आदमी का आधा दुख अगर कम होता है तो सुनने में क्या तकलीफ है आपको? सुन लीजिए। हर एक आदमी का कोई भी थिंग्स है, कोई भी बात है, अगर वो बताना चाहता है तो उसको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपके पास आए, ही स्टार्ट हिज स्टोरी एंड देन यू स्टॉप हिम इमीडिएटली इन बिटवीन एंड स्टार्ट योर स्टोरी, नॉट लाइक दैट। ऐसी आदत गलत है। बहुत सारे लोगों को आदत रहती है ना कि दे नॉट लिसन द अदर्स, दे स्टॉप द अदर एंड स्टार्ट देयर ओन स्टोरीज।
एंड ओन बढ़ाया शुरू कर देते हैं. Not good. Listen the person in front of you very carefully with good acknowledgement. This is the third thing which increase your face value in a commercial life. Fourth thing is such that always share with your subordinates or with your friends, family members, good things, positive things. Don't share more negative things. There are so much negative bugs around you. Not need to increase more. Just listen some stories, news early in the morning, read some good news, and share that only with your family members, with your friends, with your colleagues. इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के मन में डालते हैं, और सिमिलरली इट कम्स टू यू. इफ यू डिलीवर नेगेटिव एनर्जी, इट रिवर्ट बैक टू यू. इससे आपको कुछ फायदा तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान होगा. तो ऑलवेज शेयर गुड थिंग्स. दैट इज माई फोर्थ वे टू इंक्रीज योर फेस वैल्यू इन अ कमर्शियल लाइफ. एंड फिफ्थ थिंग इज सच दैट just give some time to your family members and share some of your good things, good achievements. Nobody hold you back. Tell them your good things. खुद की वाह वाह करने में कोई बुराई नहीं है. हो सकता है कि तुम्हारे अच्छे विचार सुन के, तुम्हारे अच्छे जॉब सुन के सामने वाला पर्सन भी स्टार्ट सम टू डू गुड थिंग्स. ये होता है, बहुत बार होता है. अगर आप उसको 10 अच्छी चीज़ें बताएंगे, 10 अच्छे जॉब तुम्हारे बताएंगे, तो कभी न कभी इंस्पायर होके कुछ तो अच्छी चीज़ करने की कोशिश करेगा. ही विल थॉट दैट इफ संजय इज डूइंग सो मेनी थिंग्स, व्हाई नॉट आई डू ए लिटिल थिंग्स. ये एक साइकोलॉजी रहती है. ऑलवेज शेयर गुड थिंग्स टू अदर्स. इट इज़ नॉट जस्ट लाइक एट ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट. बोलते हैं ना लोग कि खुद की वाह वाह खुद कर रहा है. फॉरगॉट अबाउट दैट. अच्छा काम करता है तो उसको पब्लिक मीडिया में लिखो, फेसबुक पे लिखो, स्टेटस में लिखो, और बताओ लोगों को कि मैंने एक अच्छा काम किया है. इसमें कोई बुराई नहीं है. डोंट थिंक दैट यू आर डूइंग योर खुद की वाह वाह. तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्स, सेल्फ प्रमोशन इज वेरी मच नेसेसरी in your commercial life. It increase your face value sure. अच्छे काम करो और अच्छी चीज शेयर करो. डोंट शेयर नेगेटिव थिंग्स. सो ये सब बड़े बड़े मोटी मोटी चीजें हैं दैट आई वांट टू शेयर विथ यू. इट विल बी हेल्प यू अ लॉट इन योर पर्सनल लाइफ. रिस्पेक्ट द अदर्स. कोई भी अच्छा इंसान हो, मान लो तुम किसी कॉलोनी में जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, बाहर गेट पे वॉचमैन खड़ा है और वो आपको स्टॉप करता है. ही वांट टू चेक यू. इमीडिएटली मेनी पीपल रिएक्ट वेरी वर्स्ट. नॉट लाइक दैट. वेरी बैड, वेरी बैड. व्हाई यू आर डूइंग वर्स्ट माय फ्रेंड? ही वांट टू डू हिज ड्यूटी. लेट हिम डू. अगर वो आपका चेकअप करना चाहता है, आपको 4 सवाल पूछना चाहता है, तो आपको बुरा लगने में उसमें क्या गलती है उसकी बेचारे की? उसी काम के लिए उसको रखा है. अगर मान लो कल कोई चोरी हो गई, कोई बैड थिंग हो गई इन कॉलोनी में, तो हम लोग उसी को कोसने वाले हैं. और वो आपको अगर कुछ सवाल पूछता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? ये एक उदाहरण के दौर पर हो गया. लेकिन हम बहुत सारे जगह पे हम लोग तो चाहते हैं कि दूसरा सुधर जाए, लेकिन खुद सुधरते नहीं. स्टार्ट फ्रॉम यू. किधर भी जाओ, गरीब कोई सब्जी वाला है तो उससे ज़्यादा माथा पीछी मत करो. बेचारों को पूरा दिन मेहनत करने के बाद 100-200 रुपये मिलता है प्रॉफिट. और 2 रुपये के चीज़ के लिए, 2 रुपये की चीज़ आप 1 रुपये में लेने के लिए आधा घंटा उससे बहस करते हो. इट इज़ नॉट गुड. 2 रुपये जगह 2.5 रुपीज़ उसको दे दो. इससे ये थिंकिंग मन में डाल दो कि इसी बहाने तुम कुछ सोशल वर्क कर रहे हो. कोई आपके घर में काम कर रहा है, आपके ऑफिस में काम कर रहा है, तो ओके, मेक सम हेल्प टू हिम. इसी बहाने तुम कुछ समाज सेवा कर रहे हैं. जो भी तुम लोग पगार कमाते हो, जो भी प्रॉपर्टी कमाते हो, जो भी
मनी कमाते हैं ना, वो सब तुम्हारा नहीं है, ये कुछ उसका पार्ट सोसाइटी का है। तो पे बैक टू सोसाइटी, ये कंसेप्ट भी मन में रखना माय फ्रेंड। ये पूरा पैसा आपका नहीं है। जब तक सराउंडिंग के लोग, गरीब लोग, आपके आजू बाजू के लोग हैप्पी नहीं रहते, खुश नहीं रहते, तब तक आप हैप्पी नहीं रह सकते। तो उनको मदद करना बहुत जरूरी है। इसमें आपका स्वार्थ दड़ा हुआ है, आपका स्वार्थ उसका छिपा हुआ है। इससे रिवॉर्ड में आपको मोर हैप्पीनेस यू विल गेट। अगर जीवन में लाइफ जगना है ना, तो ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे आपकी नींद हराम हो जाए, आपको सोते वक्त लगे कि मैंने बुरा काम किया है। तो कोई भी काम मत करिए ऐसा कि जिससे इट विल डिस्टर्ब योर स्लीप। तो अच्छा काम करो, अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करो, बुरा फल मिलेगा। और कोई भी ऑफ द वे काम मत करना है, अच्छा काम करना है, अच्छा फल जरूर मिलने वाला है। नहीं मिलेगा तो कम से कम सेटिस्फिकेशन तो पक्का मिलने वाला है। फॉरगॉट अबाउट द अदर्स, नेगेटिव थिंग को आपके पास आना नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। I have to stop now because again video is become very big. Let me talk another video. Thank you. Hi शिवानी, हाय निशांत. टीनेज बद्दल बोललो थोडंसं, कमर्शियल लाईफ बद्दल पण थोडंसं बोललो. Now it's time to talk about something about family life, because shortly or after some years you both are going to marry and you will be entered in third phase of your life, that is a family life. and family life में कौन सी चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, केयर करेंगे, तो फैमिली लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. Only thing that you have to care some things. पुराने ज़माने में बोलते थे ना, शादी एक ऐसा लड्डू है, खाए वो पछताए, न खाए वो भी पछताए. अभी वो मुहावरा गलत साबित हुआ है. मेरे हिसाब से शादी एक ऐसा लड्डू है जो न खाए वही पछताए, खाने वाला कभी पछताता नहीं है अगर वह उस रिलेशन को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से निभाए. आई मीन उसमें जो ब्यूटी है उसको जब हम लोग ठीक से ध्यान देके प्रिजर्व करें, ध्यान से समझ ले, तो इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. शादी इज़ नॉट just engagement or just combining part of husband and wife, ladka and ladki. It is a joint venture of two families. So it is very very much necessary that लड़के को, लड़की वालों के जो भी क्लोज रिलेशन वाले लोग हैं, जैसे कि लड़की की माँ, उसके भाई बहन, उनको रिस्पेक्ट देना. एंड सिमिलरली लड़की को, अगर वो लड़के के पिता का या माता का, सिस्टर का, भाई का गुड रिस्पेक्ट करे, ठीक से बात करे, उनके अच्छों के बारे में चिंता करे, तो मैं बोलता हूँ ना, तुम जितना उसके माँ से जितना प्यार करोगी ना लड़की, उससे डबल प्यार हस्बैंड विल लव यू. ही विल लव डबल टाइम. ये एक बात ध्यान में रखना है कि उसके माता पिता, बहन, भाई, उनको दुखी करके तुम हस्बैंड का प्यार पूरी 100% ग्रैब नहीं कर पाओगे. मे बी ही विल लव यू, but many times it is just show business.
Because what happened till the marriage, he stay with his parents, especially mother and father, and that bond is not easy to break easily. And if you try to break that bond, then very difficult. You will get your husband physically, but not emotionally. तो जितना ध्यान उनका रखेंगे, जितना प्यार उनको करेंगे, उससे डबल प्यार वो हस्बैंड तुम्हारे ऊपर करेगा. वेरी वेरी रेयर केस में होता है ऐसा कि थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, लेकिन दैट इज़ 1-2% और से 5%, बट 95% केस में ऐसा ही होता है कि हमको उसके पेरेंट के बारे में ख्याल करना है. अभी ये खाली लड़की को लागू नहीं होता है, लड़के को भी, जो भी हस्बैंड रहता है तो उसको भी यही चीज़ लागू होती है. उसको भी ही हैज़ टू रिस्पेक्ट हिज इन लॉज, अपने वाइफ के माता पिता बहन भाई, उनके बारे में अच्छा बर्ताव करना बहुत ज़रूरी है. उनके ऊपर प्यार करना बहुत ज़रूरी है. और वो वाइफ को दिखना भी चाहिए कि समथिंग ही इज डूइंग फॉर हर पेरेंट्स. नहीं तो उसके भी मन में यही रह जाता है कि इट्स ओके हस्बैंड बट नॉट गुड, नॉट केयरिंग माई पेरेंट्स. तो यही कहना था मेरे को कि शादी एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बहुत अच्छा लड्डू है अगर हम लोग इस रिलेशन को सही ढंग से नापे, सही ढंग से समझे. नाउ कम टू द अदर थिंग्स. लव प्यार ये थिंग खाली कॉफ़ी शॉप में बात करने में बहुत अच्छे लगते हैं. शादी के बाद हर चीज़ को हमको शेयर करना पड़ता है, नॉट ओनली फॉर योर प्यार, नॉट ओनली फॉर योर लव, नॉट ओनली योर हस्बैंड, बट लड़की को ये सी हैज़ टू शेयर एवरीथिंग. सी हैज़ टू शेयर किचन, रिलेशनशिप, कल्चर्स, फैमिली फंक्शंस एंड एवरीथिंग्स. तो ये जो जवाबदारी का भान वो लड़की के दिमाग में होना चाहिए. ये चीज़ खाली लड़की को लागू नहीं होती, लड़के को भी होती है. उसको भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहना बहुत ज़रूरी है. अभी वो ही इज़ नॉट अ चाइल्ड, ही इज़ नॉट अ टीनेजर. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आ जाती है. लड़कियों को स्पेशली ही हैज़ टू बिकम अ स्ट्रांग मैन फॉर दैट फैमिली. और इसको खुद के दुख कभी सामने नहीं दिखने चाहिए उसके. ही हैज़ टू कीप दैट सॉरोज इन हिज माइंड एंड ऑलवेज स्टे लाइक अ बिग सपोर्टर टू हिज फैमिली. बिकॉज बुरे वक्त में फैमिली उसी को सपोर्ट मान के चलती है. अगर वो धीर छोड़ दे तो बहुत मुश्किल होता है. अनदर थिंग आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब हियर इज सच दैट एक तरफा मत सोचिए. कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है कि मान लो माँ ने आपकी कंप्लेंट की तुम्हारी वाइफ के बारे में, तो हम इमीडिएटली वी ट्रस्ट हर एंड मेक सम डिस्प्यूट्स. नॉट गुड. Like this also, if wife makes some complaints about your mother, sisters, just use your दिमाग. कभी कभी शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है. Immediately don't give your reactions. बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग में हो जाते हैं. कभी कभी वाइफ का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, कभी कभी अपने माँ का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है वाइफ के प्रति. और वो बाद में मान से आफ्टर 8 days 1 month 2 month वो ठीक भी हो जाते हैं. लेकिन उस टाइम में अपना हॉट टेम्पर करके कुछ जो बातें बोल देते हैं ना, वो कभी जाते नहीं फिर. तो पूरी तरह आपको अगर भरोसा जब तक नहीं है तब तक ट्राई टू कीप काम, शांत रहिए. थोड़ा दोनों की बातें सुन लीजिए और दोनों को भी अच्छा लगे या कुछ अच्छा मिडल मार्क निकले, इस टाइप से बिहेव कीजिए. रिलेशन टूटना बहुत इजी है पर लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है. तो फैमिली में ये चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है आपको. इमीडिएटली डोंट मेक योर माइंड, डोंट
शॉर्ट टेम्पर्ड, जस्ट कीप काम। कभी कभी क्या होता है ना, टाइम इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर मेनी प्रॉब्लम्स। जैसे वो टाइम गुजर जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे कोई बिग प्रॉब्लम अनदर लाइफ में आता है, हम लोग पहला प्रॉब्लम भूल जाते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं रहता है, खाली वी कंपेयर इट। मान लो हमारे ऊपर कुछ अभी हादसा आए तो हम लोग सोचते हैं कि इससे बड़ा हादसा नहीं हो सकता, और हम लोग पूरे गिव अप कर देते हैं, पूरे रुइन हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, इससे भी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं बाद में। लेकिन जब वो बड़े हादसे होते हैं तब हम लोग पहला वाला हादसा या पहला वाला इंसिडेंट भूल जाते हैं। तो ये इतना ध्यान में रखिए कि कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में बड़ा नहीं है, तो उसके ऊपर सोल्यूशन पक्का है। नए सोल्यूशन है तो शांत रहना इज द बेस्ट सोल्यूशन। जस्ट पास अवे सम टाइम। जैसे वो टाइम, वो क्रिटिकल फेज पास होता है, कुछ दिन अच्छे आते हैं तो हम लोग पहले भूल जाते हैं, और अगेन द रिलेशनशिप बिकम्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो लाइफ में ये पक्का जरूर रखना है कि आफ्टर मैरिज यू हैव टू टेक केयर योर इन लॉज बोथ, रिस्पेक्ट देम, इमीडिएटली डोंट मेक योर माइंड, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत सारे जगह पे शांत रहिए। देन जैसे कुछ भी फैमिली फंक्शन हो, कल्चर हो, तो वहाँ पे ट्राई टू सपोर्ट योर फैमिली, फैमिली के साथ रहना सीखिए। सपोर्ट योर फैमिली ऑलवेज, and that is the things. If you take care all these things in your life, then life is very very beautiful. साथ ही साथ में एंजॉय करना भी मत भूलिए। कभी कभी कुछ कुछ पार्ट ऑफ द लाइफ इस ऐसा होता है कि वो बाद में फिर से आता नहीं। उस एज में, उस फेज में वो एंजॉयमेंट जरूर कीजिए। फॉरगॉट अबाउट द पब्लिक व्हाट दे विल से। जस्ट लाइक टू गो फॉर सम आउटिंग, पीपल बोलेंगे कि इसको कुछ पड़ा नहीं है, घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है वाइफ के साथ या क्या फैमिली के साथ, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन जो आपको ठीक लगे एंजॉय करने के उस स्टेज में कर दीजिए बिंदास, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों के बाद जो भी टॉन्ट मारने वाले लोग रहते हैं वो शांत हो जाते हैं, और फिर से अपना लाइफ सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि आज हम लोग जिंदा है, कल क्या होगा मालूम नहीं। तो आज का एंजॉयमेंट को आप सैक्रिफाइस मत कीजिए। ट्राई टू स्टे इन अ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में रहना सीखिए। टुमारो क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। अभी देखो कोरोना के चक्कर में बहुत सारे लोग बैड फेज में हैं, किसी को मालूम भी नहीं था। तो यही एक अपना प्रॉपर्टी है कि जो भी रिलेशनशिप है, जो भी हम लोगों ने प्रिजर्व किया है, वो सही ढंग से निभाए, फैमिली को अच्छा ढंग से सिखाए, बच्चों को अच्छे मैनर्स दे दीजिए, इथिक दे दीजिए, मेनली टाइम दे दीजिए उनको। बच्चा अच्छा होना है बुरा होना है ये डिपेंड्स ऑन टोटली पेरेंट्स। पेरेंट्स आर 100% रिस्पॉन्सिबल। आई एम सेइंग अगेन, पेरेंट्स आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड्स वेलबींग। कोई भी बच्चा बिगड़ता है तो उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के ऊपर रहेगी। तो जब वो मोर छोटा रहता है, जस्ट लाइक क्ले, तो अच्छा शेप देना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कर्तव्य है। बाद में 20 साल के होने के बाद जाग मत जाइएगा कि ये ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि जब बच्चा रहता है तब तो आप लोग टाइम देते नहीं उसको। तो जब बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो उनको टाइम दे दीजिए, अच्छा उनको संस्कार दीजिए, तभी वो अच्छा बनेगा और कुछ अच्छी चीज़ें बाद में करेगा। तो यही अपना एक फैमिली लाइफ है। ये सभी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है आप दोनों को भी, और आई होप यू विल टेक केयर फॉर दैट। डोंट कंसिडर मी अगेन योर बॉस, दिस इज अ फ्रेंडली suggestions. If you feel better then only follow, otherwise no need to follow it. And I'm sure that because I went through it, this helping me, and I'm sure it will help to you also. हर एक फैमिली में ये चीज़ें काम में आएंगी, क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये कुछ एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये दिस इज नॉट अ वर्चुअल थिंग।
कुछ देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और एक पक्का काम में आएंगे। तो इसको आजमाइए, एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक लगे तो पक्का फॉलो कीजिए, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए। दिस इज़ द लाइफ, एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच, बाय।